Good afternoon, students. Good Good afternoon. afternoon, Good sir. afternoon, sir. कैसे हैं सब लोग? Sir, अच्छे हैं। Sir, fine. Sir, अच्छे हैं। So, Great, great. बढ़िया, ठीक है। Alright. लास्ट हमने क्लास में क्या किया था? Anybody? Sir, French वाला पार्ट हमारा Yes, sir. Sir, making of nationalism in Europe से start करना है। ठीक है, okay. Just give me a moment. I'm gonna fetch that. एक सेकंड। Visible है बच्चों? No, sir. No, sir. no, sir. अरे एक just give me a moment. अभी No, sir. No, sir. Sir. No, sir. how is this possible? I have shared only. Sir, अब हो ये present. Sir, now it is visible. Visible है बच्चों? Yes, sir. Yes. All right. Very good. Okay. यही चला था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से start करना है। So start करना sir. यहाँ से स्टार्ट करना है। ऑलराइट, Yes. तो करते हैं स्टार्ट। दीक्षा, Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। If you look at the mid 18th century Europe, you will
find that there were no nation states as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, their trees and kingdoms whose rulers had their Your voice is breaking और प्रॉब्लम है कुछ? सर एको हो रही है। सर एको हो रही नहीं, है। एको तो हो रही है पर ब्रेक भी कर रही है। ब्रेक भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। again. Yes sir, break हो रही है। क्या बोल रहे हो दीक्षा? दीक्षा, मुझे लगता है उसका नेटवर्क का इशू है। ठीक है, किसी और से पूछते हैं। जय, Yes, sir. चलो पढ़ के बताओ। Okay, sir. The making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms. The Duchies and cantons were rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often, they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke variety of dialects. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovences in Cariola, Croats to the south, and the Romans to the east in Transylvania. Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the empire. How did Allegiance. how अच्छा did सुनो, बस nationalism बस 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 ये आगे के बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सोचना समझ लेते हैं बस। ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? अब मेकिंग किसी चीज का बनना या होना होता है, ये तो सबको पता है हमें, ठीक है? यस सर। और नेशनलिज्म का मतलब आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? कोई ऐसा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, तो थोड़ा कुछ बता सकता है व्हाट इज नेशनलिज्म? सर नेशन की तरफ प्यार। ओके, और कोई? सर लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। और कोई? सर प्राउड टुवर्ड्स नेशन। प्राउड टुवर्ड्स नेशन, ऑलराइट। देखो होता क्या है, जब नेशनलिज्म की बात हम करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी चाहिए हमें कि आम तौर पर हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी रिलीजन हम देखते हैं, लाइक वी से इज्म आफ्टर अ रिलीजन वर्ड, तो इट बिकम्स धर्म। लाइक फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म मींस हिंदू धर्म, राइट? जैनिज्म इज जैन धर्म, ठीक है? अब धर्म मतलब लाइक यू समथिंग यू अटेन, राइट? ऐसे ही नेशनलिज्म का मतलब हुआ like you attain your nation, means belonging to some country is called nationalism. A feeling of belongingness to a country is called nationalism.
जिसमें साथ में और बहुत सारी चीजें आती हैं। ये कौन बच्चा है, एक बार माइक ऑफ कर लो आप लोग, सब लोग, ठीक है। ये जितनी भी चीजें जैसे कि आपने बोला, चाहे वो प्राइड टुवर्ड्स कंट्री हो, लाइक टुवर्ड्स कंट्री, लव टुवर्ड्स कंट्री, यू नो, सब कुछ जितना भी है वो सारा कुछ आता है बिलोंगिंग नेक्स्ट टू योर कंट्री, कि आप किसी कंट्री से आप हैं, यहां से शुरुआत होती है नेशनलिज्म की। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। नाउ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में इस भावना का आना ये कैसे शुरू हुआ? देखो, पहले जैसे आज जो हम देखते हैं यूरोप में तो बहुत बड़े बड़े मेजर कंट्रीज हैं, आप नाम जानते होंगे सबके, चाहे वो इंग्लैंड हो गया या ब्रिटेन, सॉरी, या फिर जर्मनी हो गया, या फिर इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये सब कंट्रीज के बारे में आपने सुना है? यस सर, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ठीक है। नाउ क्या ये सारी कंट्रीज वैसे ही थे जैसे आज हैं, या पहले कुछ और? नो सर, पहले डिफरेंट, पहले मोनार्की थी, मोनार्की थी सर, रूल करते थे। चलो सर, पहले ये भी नहीं था ना, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी राज मतलब एम्पायर रहता था सर, जैसे किसी भी एरिया के अगर हम हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हम आसानी से उसे समझने के लिए कंपैरिजन करने लगते हैं इंडियन हिस्ट्री से, राइट? इट इज, आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड टिप और सॉर्ट ऑफ ट्रिक। किसी भी एरिया की हिस्ट्री को समझने के लिए आप उसे इंडियन हिस्ट्री से कंपेयर कर लीजिए, यू विल बी इजीली एबल टू डाइजेस्ट, राइट, एंड रिकॉल इट फॉर लाइक, यू नो, बहुत अच्छे समय से बाद भी आप रिकॉल कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस सर, क्योंकि पढ़ी वो है स्टार्टिंग में हिस्ट्री के नाम। कृष्णा, लेट मी गिव अ चांस। सॉरी सर। वेरी गुड, थोड़ा समझेंगे। नहीं बेटा, सॉरी, कोई बात नहीं है, वेरी गुड। समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखो, इंडिया में क्या हुआ, क्या जो आज इंडिया है, क्या जो हमारे इंडिया में जो प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्या जो विधानसभा का कॉन्सेप्ट है, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का जो मंत्री परिषद, इन सब का जो कॉन्टेस्ट है, या जो कहना चाहिए, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो शुरू से चलता आ रहा है क्या? No sir. No sir. India also had some of kingdoms, a very good one, sometimes bad one too, but it always had some kingdoms or something, ठीक है? Yes sir. अगर हम देखें तो सिर्फ आज का इंडिया जो आज हमारे जानकारी में है वो इंडिया ही नहीं, उसके आसपास के बहुत सारे कंट्रीज भी उसी किंगडम के अंदर आते थे। जैसे कि बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो 1971 में बना, उससे पहले वो पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान, और उससे पहले वो इंडियन कॉन्टिनेंट में आता, मतलब इंडियन उसमें आता था। ठीक है, बताती है कि था वो पहले। ओके, इंडियन टेरिटरी में आता था। यस सर। फिर क्या हुआ, उससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया में आता था 1947 से पहले। यस सर। पहले अफगानिस्तान भी इंडिया में आता था। यस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो आपका म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल का कुछ पार्ट हो गया, तिब्बत का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, श्रीलंका का पार्ट हो गया, ये सब कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिया से ही निकले हैं। ठीक है, आप देखोगे तो कुछ कंट्रीज के नाम आज भी इंडिया से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया। यस सर। यस सर। लाइक आप इसको देखो थोड़ा, अगर इसको हम बाइफिकेट करें दो पार्ट्स में, तो इंडियन और एशिया, राइट, यही तो बनता है। ऑलराइट, तो मेरा एक्चुअल में कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझने का लॉजिक मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि इंडिया में भी इस तरह की चीजें रही हैं कि हमने देखा कि पुरानी किंगडम्स थी, उसके बाद फिर और कुछ नया तरीके का रूलिंग आया, धीरे धीरे करके वो आज हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो रिपब्लिकन है, वो हमारा आज एक अच्छे खासे फॉर्म में है। एंड वी आर प्राउड टू बी द लार्जेस्ट रिपब्लिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, बिल्कुल। यस ओवर 135 करोड़, ठीक है। यस सर। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वो अब यहां से थोड़ा सा समझेंगे वहां पर, जैसे कि यहां पर था वैसे ही वहां पर था। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया में थोड़ा सा कि 16 महाजनपद कहे जाते हैं। मौर्य वंश का नाम सुना आपने? चंद्रगुप्त मौर्य का तो सुना ही होगा। यस सर।
Yes, sir. Mauryan dynasty. यस सर, सुना है। हाँ, मौर्यन डायनेस्टी, वेरी गुड। तो उससे पहले 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपदास का एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या एक्चुअल में था, 16 महाजनपद थे, उसमें से 2 महाजनपद वज्जी और वैशाली रिपब्लिकन रूप से चलते थे, वहां पर पोलिंग होती थी और राजा का बेटा राजा नहीं होता था। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट टू हैव दिस इन माइंड कि इंडिया में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। जब यूरोप का कोई जानता भी नहीं था कि यूरोप क्या है, तब से इंडिया में रिपब्लिक है, यानी क्राइस्ट के जन्म से भी 500 साल पहले, और बल्कि और ज्यादा भी, यानी जीसस क्राइस्ट के सर आपने नाम क्या बताया महाजनपदास का? 16 वज्जी और वैशाली। ओके सर, ठीक है। तो एक्चुअल में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम वापिस चलते हैं यूरोप में। यूरोप में जो शुरुआत हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर लोगों के अंदर एक चीज का सेंस आया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द कंट्री, राइट। और वो बिलोंगिंगनेस सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो वहां पर पैदा हुए थे, बल्कि उन्हें ये समझ में आया कि भाई जब वो वहां पैदा हुए हैं, उनके ऊपर लोग वहां पर राजकाज कर रहे हैं, वो लोग पैसा चुका रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट भी होना चाहिए ना। यस सर। कहीं ना कहीं उनके कुछ राइट्स भी बनते हैं ना। अगर कहीं किसी के ऊपर कोई बर्डन है या फिर कहीं किसी को कोई उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो समटाइम्स दे शुड बी गेटिंग सम ऑफ द राइट्स टू, ठीक है। और ये जो राइट टू हैव अ राइट, ये वाली सेंस था, इसी से नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और उसमें सिर्फ ये नहीं आया, अगर आप देखोगे सिंगल पर्सन के हिसाब से, तो इट विल बिकम सेल्फिशनेस, राइट, कि भाई मेरे भी तो अधिकार होने चाहिए, मेरे नहीं। वहां पर सर्वसामान्य यानी जनरल पीपल के सबके इक्वल राइट्स हों, ये एक बात आई दिमाग में, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब आगे ये कहता है कि जो जर्मनी या इटली या स्विट्जरलैंड जो आज हम देखते हैं, ऐसे नहीं थे, ये बिल्कुल भी नहीं थे। आपने नाम सुना होगा लुई 16 का लास्ट क्लास में? यस सर। यस सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। शाबाश। उसकी वाइफ का नाम याद है किसी को? सर मारिया एंटोनिएट, मैरी एंटोनियो, ये नाम एक्चुअल में ये सब एक ही वर्ड है, उसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया गया है। तो ये नाम को आपने सुना? यस सर। तो आप मुझे बताओ ये कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया आज एक कंट्री है, याद है? सबको पता है बात? यस सर। लेकिन एक समय पर ये क्या था, याद है किसी को? It was a part of Austro-Hungarian Empire. Ottoman Empire. याद आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो बस मेरा यही एक इंफॉर्मेशन देने का लॉजिक था। आगे बढ़ेंगे। अब ये कहलाते थे, पहले क्या थे? या तो किंगडम थे, या ड्यूचीज थे, या कैंटोन्स थे, ठीक है, ये सब थे। अब ये बोलोगे ये सब क्या है? तो किंगडम तो सबको पता है कि राजा के अंडर चलता था, ठीक है। ड्यूचीज या ड्यूकीज बोलते हैं उन्हें जिनके ऊपर ड्यूक का शासन था, ठीक है। और कैंटोन्स, आपने नाम सुना होगा, कैंटोनमेंट सुना है किसी ने? कैंटोनमेंट यस सर, सुना है। कैंट बोलते हैं सर, कैंट सुना। आर्मी कैंट, यस सर, ये उसी से लिया गया नाम है, ठीक है। जैसे दिल्ली कैंट भी है ना शायद? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली कैंट है। वहां पर रेलवे स्टेशन भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर एक्चुअल में वो मिलिट्री वाला एरिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है बच्चों? अब हुआ ड्यूक मतलब? ड्यूक एक तरीके का राजा ही होता था, छोटे एरिया पे यूज करने, मतलब लीडर, ठीक है। बट वो भी ऑटोनोमस की तरह से चलता था और हिरार्की उसमें कोई इस तरह की नहीं थी। हाँ, वो डच में ही होता था, बस इतना ही है। आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. अच्छा, किसी को वो चैप्टर याद है बेल्जियम वाला, लैंग्वेज वाले, जिसमें क्वेश्चन चैप्टर आया था? सिविक्स का चैप्टर 1।
सर सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। सर चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग याद आ गया बच्चों? उसमें उनका इशू क्या था? वो लोग क्या लैंग्वेज बोल रहे थे? डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे। यस सर। राइट। अरे अपन अगर हम इंडिया में भी देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से बात की जाती है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में। इनफैक्ट अगर लैंग्वेज भी अगर आपकी सेम है तो डायलेक्ट अलग है उसका। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में भी हिंदी बोलते हो, राजस्थान में भी हिंदी बोलते हो, मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोलते हो, पंजाब में भी हिंदी बोलते हो, दिल्ली में भी हिंदी बोलते हो, हरियाणा में भी हिंदी बोलते हो, बिहार में भी हिंदी बोलते हो, लेकिन सबका डायलेक्ट, सबका प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग अलग है। राइट? यस यस सर। यस सर। नारायण इतना चिंता मत कर, मैं करवा दूंगा उसको। नो सर, अभी आपने बोला कि पावर शेयरिंग में सर कुछ ऐसे मतलब कोई इशू था सर, हमने जब पढ़ा ही नहीं है तो उसके बारे में कैसे बताएंगे? ओके, आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में कैसे बताएंगे, लेकिन मुझे सब पता है कि ये बच्चे जो है ना इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये लोग सब पहले ही देखे हुए हैं और स्कूल्स में भी कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, और इस बारे में हमने एक बार लास्ट क्लास में बात भी की थी, शायद मे बी यू वर नॉट देयर और मे बी समथिंग हैपेंड। ठीक है, ओके सर। एनीवेज, तो यहां तक तो क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब लैंग्वेजेस अलग अलग होती थी। ठीक है, लोगों के अंदर कलेक्टिवनेस की कोई फीलिंग नहीं थी कि भैया हम लोग कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखें जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रो-हंगेरियन एरिया फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, इंक्लूडेड द एल्पाइन रेंज। ठीक है, एल्पाइन रीजन भी था उसमें। ठीक है, और टायरोल भी था, ऑस्ट्रिया भी था, और सडनलैंड था। ठीक है, और उसमें बोहेमिया, ये सब मतलब जितने भी एरियाज हैं जिसमें कुछ कुछ एरिस्टोक्रेसी वाला पार्ट था जहां पर जर्मन बोली जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज के बोले जाने वाले एरिया और बहुत सारे ज्योग्राफिकल डिफरेंट एरियाज जैसे कि हम देखते हैं वो वहां पर उसमें आते थे ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर में। ठीक है, पर कॉर्पोरेट अच्छे से नहीं कर पाते थे, इसलिए नेशन बने और उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज। कॉर्पोरेट या कोऑपरेट? सर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। ओके सर, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बेटा सर, कॉर्पोरेट बिजनेस वाले में आ गया, मतलब थोड़ा मतलब हमें वही मार्केट वगैरह। कोऑपरेट, को माने साथ में, ऑपरेट माने चलाना या साथ में चलना, सिंपल, कोऑपरेट। यस सर। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग। हाँ बेटा। तो लैंग्वेज डिफरेंट होती थी तो एक साथ बातचीत करना और एक साथ काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमारी कंट्री में भी इंग्लिश करीब करीब सब जगह ही बोली जाती है, हिंदी से भी ज्यादा। इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब लंबार्डी का भी वो कवर करता था, वेनेशिया यहाँ पर इटालियन बोली जाती थी। ठीक है, ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं, ये पढ़ पढ़ के आप समझ रहे हैं। ठीक है, मेजर मेजर जो मैं समझा रहा हूँ वो से समझने की बात है। ठीक है, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक Magyar while other half spoke a variety of dialects. ठीक है, in Galicia the aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there were also people within the boundaries of the empire, a mass of subject peasant peoples, Bohemians, Slovaks to the north, and Slovenes in Carniola. ठीक है, अच्छा, बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है कि ट्रांसिल्वेनिया हो गया या वहां पर रोमन्स हो गए, ठीक है, या फिर अलग अलग एरियाज जितने भी हैं वहां पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। ठीक है, such differences did not easily promote to a sense of political unity. Obviously अलग अलग तरह के विचारों के लोग, अलग अलग तरह के कल्चर के लोग, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक साथ रहना, एक साथ घुल मिलकर चलना, इट इज नॉट इजी, राइट?
आपने देखा होगा अभी बहुत सारे कंट्रीज अलग अलग बनते चले गए हैं, और वैसे भी लोग अपनी जो लैंग्वेज होती है वो उसको सुपीरियर समझते हैं, अपनी जो कल्चर होता है उसको सुपीरियर समझते हैं बाकी लोगों के कल्चर या लैंग्वेज या फिर रहन सहन या फिर अपना जो भी चीज उनका खुद का अपना होता है वो उसे बेटर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो तो अगर कोई व्यक्ति सूट बूट पहनता है, सूट पहनता है और ये सब मतलब इस तरह से रहता है तो उसको वही पसंद आएगा। वो हमें अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियंस को हमेशा नीचे दिखाया, क्यों दिखाया और क्या कह के दिखाया, तो आपको याद करना चाहिए कि ये कहा गया कि सबसे पहले तो बोला कि आपकी जो स्किन टोन है वो खराब है, दूसरा आप कपड़े खराब पहनते हैं और आप अनपढ़ हैं क्योंकि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, राइट? यस सर, सब अपने आप से कंपेयर किया। सेंस ऑफ ये एक रह गया, प्राइड है कहना चाहिए मेरे को, या फिर क्या कहना चाहिए कि लोगों के दिमाग में आज भी ये बात है दैट इफ यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश यू आर नॉट एडुकेटेड। ये एक लॉजिक दिमाग में है कि भाई पढ़ा लिखा तभी माना जाएगा जब वो अंग्रेजी बोल रहा हो। इफ समबडी डज नॉट स्पीक इंग्लिश तो फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है? एक ये लॉजिक रह गया है दिमाग में हम लोगों के भी, ठीक है? जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ठीक है? यहां पर भी वही स्थिति थी। The only tie binding these diverse group together was a common allegiance to an emperor, to the emperor और empire, ठीक है? बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं या इस चैप्टर क्या कह रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जो उनको जोड़े हुए थे ना, वो बेसिकली जो उनका एम्परर था, जो उनका राजा था, जो उनका साम्राज्य था, उसी से वो लोग जुड़े हुए थे। बाकी उनके बीच में कोई खास कॉमन चीजें थी नहीं, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। अच्छा, आप यहाँ पर अगर कंपैरिजन देखेंगे इंडिया से तो आप यहाँ पर देखिए इंडिया में भी ये स्थिति है, लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट अलग है, लोगों का रहना सहना अलग है, खाना पीना अलग है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोग एज ए इंडियन अपने आप को समझते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक तो पहली चीज तो हमारे रूट्स बहुत पुराने हैं, कई हजारों सालों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, ठीक है? और दूसरा, इंडिया इज ए लैंड जहां पर हर एक कल्चर को वेलकम किया गया है शुरू से, राइट? आप देखोगे दुनिया में अगर इजराइल के अलावा कहीं भी ज्यूज हैं और वो अच्छे से रह रहे हैं तो इंडिया में है, अगर वो पारसी है कहीं पे तो इंडिया में है, राइट? जैनिज्म इंडिया में, वैरायटी ऑफ कल्चर सबसे ज्यादा इंडिया में, हमारे हर एक कल्चर को अच्छे से फूलने फलने का मौका दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट इमर्ज? कैसे बढ़ा ये, कैसे आगे आया, समझ में लोगों को कैसे लगा कि नेशनलिज्म क्या है या आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्या है, ठीक है? Now aristocracy and the new middle class, इसको थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? समय है कृष्णा, लास्ट टाइम पढ़ा था ना तूने? यस सर। मोक्षिका तूने कब पढ़ा था? सर मैं लास्ट क्लास में पढ़ने वाली थी लेकिन मेरा बिल्कुल आधे घंटे पहले कनेक्शन चला गया, फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाया दोबारा। चल तो आज पढ़ दे, कोई बात नहीं है। Okay, sir. The aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful autocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production or for the market. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being. A working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, or professionals.
In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal middle classes that ideals of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. So done. ठीक है, अब कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? समय सबसे पहले किसने बोला था? मानस। चल ठीक है मानस, मैं वैसे सोच रहा था कि तेरे से पढ़वा दूं, पर चल कोई बात नहीं, पहले तो एक्सप्लेन कर दे फिर देखते। ओके सर इसमें हमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग जो हुई थी कि सोशली और पॉलिटिकली जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, मतलब जिन लोगों के पास लैंड है वो ज्यादातर राइट्स एंजॉय करते थे और वो एक डोमिनेंट क्लास थी ऑल ओवर द यूरोप कॉन्टिनेंट। लेकिन जो ये वाली क्लास के मेंबर थे वो एक कॉमन वे में काम करते थे ताकि उन लोगों के आपस के बीच में ही मतलब जो रिलेशंस है वो खराब ना हो, तो उन सभी का काम करने का एक कॉमन वे था। और सर ये लोग जो थे ये अपने ई स्टेट्स ओन करते थे और टाउन हाउसेस ओन करते थे। कंट्री साइड मतलब जो हमारे एरिया जो गांव वाले एरिया है वहां पे ये ओन करते थे बहुत सारे ये वाले हाउसेस। और सर जो इनकी लैंग्वेज थी जो बोलते थे वो फ्रेंच बोलते थे। और ये फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रांस में मेन लैंग्वेज वहाँ की बना दिया गया था। तो उसी रीजन में ताकि ये अपने आप की हाई सोसाइटी और अपनी जो मतलब ये हाई क्लास अपने दिखाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर सकते थे। ये जो पावरफुल मतलब जो ये क्लास थी वाली जो हमारी डोमिनेंट क्लास थी ये थी तो सही बहुत पावरफुल, लेकिन इनका जो नंबर था वो यूरोप में काफी कम था। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो पीजेंट पॉपुलेशन थी जो कि खेतों में काम करते थे। वेस्ट की साइड में जो बल्क ऑफ द लैंड है, जो बहुत सारा लैंड है, वो जो टेनेंट्स हैं और जो स्मॉल ओनर्स हैं, मतलब मेन लैंड तो किसी नोबल का है, लेकिन उसके बाद वो जो टेनेंट्स हैं और जो वहाँ के स्मॉल ओनर्स हैं उनके पास वो लैंड रहता था जिसमें वो काम करते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो हमारे वाले रीजन्स हैं वहाँ पे लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न है वो जो सर्फ्स हैं, सर्फ्स मतलब सर वो फार्मर्स जो कि फ्यूडल सिस्टम के अंदर बंधे हुए होते हैं, मतलब जो हमारे जो नोबल्स का लैंड होता है उनके अंदर काम करते हैं और वो क्रॉप को उनको देते, मतलब जो क्रॉप का एक पार्ट उनको देते हैं और कुछ पार्ट अपने के रखते हैं। सर वो सर्फ्स को वो लैंड मिलता था उनकी जो कल्टीवेशन उसके लिए। उसके बाद सर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जो ट्रेड है वो धीरे धीरे जो कमर्शियल क्लासेस है मतलब वहां से बढ़ने लगा। मतलब जो कमर्शियल क्लासेस है उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, जिससे जो टाउन्स है उनकी ग्रोथ हुई और जो कमर्शियल क्लासेस का भी ग्रोथ हुआ, जिनकी मतलब इनका भी ग्रोथ हुआ जो कि आगे मतलब न्यू मिडिल क्लास बनने वाली थी। उसके बाद सर इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब जो कि इंडस्ट्रीज वहाँ पे इंडस्ट्रीज का खड़ा होना, वहाँ पे प्रोडक्शन काम होना, वो इंग्लैंड में तो हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब अराउंड 1750s के टाइम पे इंग्लैंड में वहाँ पे शुरू हो गया था। लेकिन कुछ बाकी कंट्रीज में, मतलब कंट्रीज तो नहीं बोलूंगा मैं उस टाइम पे, मतलब कुछ बाकी रीजन्स में जैसे फ्रांस और जर्मनी के वहाँ पे वो मतलब वो 19th सेंचुरी के टाइम पे शुरू, मतलब वो 1800s के बाद ही शुरू हुआ। और सर इसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हुआ वैसे वैसे एक नई कम्युनिटी का राइज हुआ, जो हमने पहले भी इसको अभी पढ़ा था, वो है मिडिल क्लास। वो न्यू मिडिल क्लास का राइज हुआ जिसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो उसको कंसिस्ट करती थी। इनका राइज हुआ इससे, और धीरे धीरे करके इनिशियली लेट 19th सेंचुरी तक, मतलब लेट 1800s तक इनका जो नंबर था वो काफी कम था। लेकिन यही लोग थे जिनके अंदर जो मेन एरिस्टोक्रेसी है उसको खत्म करने का एक फीलिंग अंदर से आई, और यही मेन लोग थे जिन्होंने वो नेशनल यूनिटी क्रिएट की, जिनका मेन काम था जो मतलब जितने भी इनके पास बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म करना, और जो बाय मेरिट जो मेरिट से मिले उनको एस्टैब्लिश करना इनका मेन रीजन था। और इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी जो पॉपुलैरिटी वो गेन किया ऐसे करते। ओके, वेरी गुड। देखो एक चीज उसमें थोड़ी सी और समझने वाली है। वेरी गुड बेटा, अच्छे समझाया। थोड़ा सा एक दो चीज और पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लॉजिक क्या है, हमें ये पैराग्राफ्स ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, या कहना चाहिए मोनार्की के खिलाफ,
ये बातें निकल के आई सामने। कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो लोग जिनको प्रिविलेजेस मिल रही थी किस बेसिस पर, उनके बर्थ के बाय बर्थ के बेसिस पर, या फिर कहना चाहिए उनके लाइनेज के, या फिर उनके परिवार के बेसिस पर उनको कुछ अगर प्रिविलेजेस मिल रही थी, तो उनके सामने कौन खड़ा हो रहा था? तो पहली चीज तो ये वो लोग थे जिनको अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। या तो हम लोगों ने पीजेंट्स पढ़े थे या फिर हमने हायर क्लास पढ़ा था। ठीक है, बीच में आपको याद होगा, अगर आपने 9th क्लास में वो पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको याद होगा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो बुक्स लिख रहे थे, आर्टिकल्स लिख रहे थे, लोगों को अवेकन कर रहे थे। याद है? यस सर। यस सर। थर्ड स्टेट के रिच लोग, वो लोग या तो थर्ड स्टेट के कहने वाले थे, रहने वाले थे, लेकिन वो उतने गरीब नहीं थे, या तो ठीक है, या फिर वो फर्स्ट या सेकंड स्टेट के थे और वहां से वो लोग ये देख रहे थे कि नहीं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, उनके साथ जबरदस्ती उनको दबाया जा रहा है। राइट सर, एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा। सर, ये जो हम मतलब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं, ये नेपोलियन बोनापार्ट के बाद का टाइम पढ़ रहे हैं या फिर अभी मतलब हम वही वाला टाइम पढ़ रहे हैं जब रेवोल्यूशन एंड ये सब हुआ था? एक्चुअल में बेटा हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि उसके पहले वाला या उसके बाद वाला। जैसे कि अगर हम देखें तो क्योंकि स्टेट सिस्टम तो उन लोगों ने मतलब धीरे धीरे करके वो लोग खत्म ही कर रहे थे ना। बट हम सबसे एक बार के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। एक्चुअल में क्या है कि हमें ये पॉइंट यहां से नहीं समझना है कि किसका शासन था या कौन राजा था या कौन रूलर था। बेसिकली हमें ये समझना है कि हमें ये जो एक्चुअल में ये हमारी गलती नहीं है, हमने शुरुआत से हिस्ट्री को इसी तरह से पढ़ा है कि वो किसके शासन में ऐसा हुआ, किसके काल में ऐसा हुआ, कौन से ईयर में ऐसा हुआ। असल में यहाँ पर आइडिया की बात है बच्चा, ठीक है। और वो आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ न्यू मिडिल क्लास, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ बिलोंगिंग टू अ कंट्री, आइडिया ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, स्टिल बिलोंगिंग टू इक्वालिटी। ठीक है, ये जो आइडिया था ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, एक साल में पैदा नहीं हुआ, किसी के शासन में नहीं पैदा हुआ। जैसे कि आपने नीचे पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो 18वीं जो 18th सेंचुरी थी उसके लेटर पार्ट में, लेटर हाफ में आया था ब्रिटेन वाले एरिया में, और फ्रांस और बाकी के एरिया में जो आया था वो 19th सेंचुरी के आसपास आया था, मतलब 1800 के बाद। ठीक है, लेकिन आप ये देखो, क्या इंडिया, कोई बता सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? सर 1701 या उसके आसपास में आई थी। सर 1769 सर 1700 और तो सर उससे थोड़ा सा ही पहले हो गया है। एक सेकंड, 1600 किसने बोला? लव्य, मानस किसने बोला? सर मानस ने। सर 1600 में चार्टर उन्होंने लिया था ना शायद ब्रिटेन की क्वीन से, शायद इतना मुझे याद आ रहा है। क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था और दिसंबर 1600 को इंडिया में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक बच्चा क्या ना सोचता, तो एक बच्चा चैट में लिखा है सत्यम गोयल, सर एट द टाइम ऑफ जहांगीर। मैं यही बताना चाह रहा था। शायद अगस्त में आई थी। नहीं, दिसंबर में, मुझे नहीं आना चाहिए था। ठीक है सर, इसका मतलब कि लोग कह देते थे कि ये रूल खत्म, मतलब ईस्टेट सिस्टम खत्म हो गया, वो मिनिमाइज हो जाता था, लेकिन उसको रूट से हटाने के लिए बिल्कुल बहुत टाइम लगा, सेंचुरीज लग गई। मतलब ऑब्वियसली बेटा, अब अच्छा एक बात बताओ तुम मेरे को, किसी भी एक स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना क्या आम बात है क्या? नॉर्मल बात है क्या? नो सर। हम लोग हम लोग एक टूथब्रश लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि एक नॉट सो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, लेकिन क्या वो एक दिन में ही खराब होकर फेंक जाते हैं क्या हम लोग? नो सर। और खास तौर से इंडियंस, हम लोग तो बाद में उसमें धागा बांध के पता नहीं क्या क्या किस यूज में लेते हैं।
राइट? कपड़े होते हैं, हम उसको, वो फट जाता है तो उसको पोंछे के रूप में ले लेते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक दिन में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, इट टेक्स ईयर्स, ठीक है? खासतौर से लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपका, खासतौर से रूलिंग स्टाइल, खासतौर से आपका कल्चर एक दिन में खत्म नहीं होता, ना बनता, नया बनता है, ना पुराना जाता है, इट टेक्स टाइम, राइट? ओके सर, अगर मैं थोड़ा आइडिया लगाना हो कि हम किस टाइम पीरियड के टाइम की बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम बात कर सकते हैं मॉन्टेस्क्यू के समय से लेकर के, ठीक है? और बेसिकली देखा जाए तो समझ लो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के समय की बात अगर हम करें, तो जब वो राजा बन रहा था, या जब वो कहना चाहिए वो मतलब जो नेशनल असेंबली की बात है फ्रांस में, वहां से समझ लो, ठीक है? और उसके बाद भी ये नहीं है कि एक दिन में ही हो गया। यस सर, एक दिन में कैसे हो जाएगा? सर डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? ये ज्योत्सना ने बच्चे ने लिखा है कि ऑन अगस्त 24, 1608 एट द पोर्ट ऑफ सूरत। हाँ बेटा, ये जो तुम बता रहे हो ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तुमसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। रीजन उसका क्या है कि जिस जहाज की बात आप कर रहे हो वो आया था इसके लिए, क्या बोलते, बिजनेस के लिए, ठीक है? लेकिन 1600 में पहला चार्टर लेकर के जो जहाज आया था वो आया था, और वो भी सूरत के पोर्ट पे नहीं आया था, वो आया था कोलकाता पोर्ट पे, ठीक है? सर डिप्लोमेसी का क्या मतलब? डिप्लोमेसी सर डिप्लोमेसी तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए ना, कि जो सर अब्रॉड में जाते हैं। सर लिखा हुआ है, कहाँ पढ़ लिया बेटा तूने? ये सर फर्स्ट पैराग्राफ में 5th लाइन है। यस सर, 5th लाइन। हाँ, बेसिकली डिप्लोमेसी का हिंदी वर्ड तो मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक्चुअल में क्या है कि देखो, समझना चाहिए हमें किसी भी वर्ड को, ठीक है? डिप्लोमेसी बेसिकली होती है हमारी, कहना चाहिए राजनीति, कूटनीति, ये, ठीक है? सर राजनीति, मतलब कोई भी राजनीति तरफ तो को हो गई फेवर ना पॉलिटिक्स, करना, मतलब राजनीति तो हो गई पॉलिटिक्स, और डिप्लोमेसी हो गई कूटनीति, ठीक है? ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो मेरा बेसिकली बताने का लॉजिक सारा कुछ यही है, ठीक है? कि एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अच्छे से पीक आया है वो 1750 के बाद में आया है, 1750 के बाद में आया है ब्रिटेन में, राइट? yes, और इंडिया में पहला चार्टर लेकर के 1600 में ही आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचो 150 साल लग गए उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करते में, जबकि वो किसी दूसरे कंट्री में ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसने युद्ध भी लड़ लिए हैं इंडिया में, फ्रांसीसीज के साथ मिल युद्ध लड़ लिए हैं, अलग अलग उन्होंने सिख एम्पायर के साथ युद्ध लड़ा है, मराठा एम्पायर के साथ युद्ध लड़ा है, तो ये सब भी काम कर रहा है, उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा है उधर, ठीक है? ये कूटनीति का क्या मतलब होता है? कूटनीति कूटनीति का मतलब बेसिकली होता है बेटा कि कैसे हम शासन मिलके चला रहे हैं, किसके साथ हमारी तालमेल बैठ रहा है, किसके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है? किसके साथ हम मिलकर के सरकार बनाएंगे, या इस तरह की चीजें जो होती हैं आज वो पॉलिटिक्स में इस तरह से यूज होती है, जिसका मतलब इट इज वन एंड द सेम थिंग, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। Yes. Now we were also talking about this, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है इसमें जरा सा समझने का है, ठीक है? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पहली फैक्ट्री कब लगी थी, जो बात अभी भी मैंने जो उसको बताई थी, क्या नाम है, मोक्षिका को, एक दिन में नहीं हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन से भी पहले बहुत सारे कंट्रीज इंडिया में आए हैं, चाहे वो पोर्चुगल हो या फिर और भी कोई कंट्रीज हो, ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन 1498 में आ गया था पोर्चुगल, तो पहला वास्को डी गामा। यस सर। ठीक है,
और वो 1498 के बाद भी पोर्टुगल देख लो कहां पर है। ठीक है, बेसिकली मेरा सिर्फ बताने का मतलब है एक दिन में नहीं हुआ, बहुत समय लगा इनको सबको। ठीक है, पढ़ेंगे। यस सर। चलिए, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। यहाँ पर Liberal सर्व का nationalism- मतलब क्या बेटा? बेटा तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर यहाँ पर सर्व्स का क्या मतलब है सर? फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन है। अच्छा ओके, सर्फ बेसिकली सर्फ वो बेटा वो होते थे जो कहना चाहिए कि एक ऐसा समझ लो एक एरिया, एक ऐसा गांव या फिर एक ऐसा शहर जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्लासेस रहते हो। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे कि जिसमें वहां पर लेबर्स भी हों, वहां पर पीजेंट्स भी हों, वहां पर आपका प्लांटर्स भी हों। ठीक है, वहां पर और बहुत सारे क्लासेस ऑफ पीपल रहते हो। ठीक है, बेटा अभी एक सेकंड रुक जा। लास्ट क्लास में किसको चांस नहीं मिला था और मैंने नाम लिया था, उसको चांस नहीं मिला था। नारायण, तुम्हें लास्ट क्लास में चांस मिला था ना शायद? यस सर। अच्छा, देवांश तुम्हें? सर मुझे तो 4-5 क्लास से नहीं मिल रहा है। अच्छा ओके, मनोज? क्या सर मैं सर पिछली क्लास में रीड किया था मैंने। सर मैं सर कहना है लवे, तूने कब किया था, कब पढ़ा था? सर शायद एक क्लास छोड़ के पढ़ा था, पिछली क्लास छोड़ के। अच्छा रुक जाए एक सेकंड अभी, और बाकी बच्चों से देख लेते हैं फिर उसके बाद। कृष्णा, तूने तो लास्ट की क्लास में पढ़ा था? यस सर। तो फिर इतना उतावला क्यों हो रहा है? रुक जा। तब मैं कहाँ हो रहा हूँ? अच्छा ठीक है। फरहान? देवांश तेरे को पढ़ने दूंगा मैं आज, रुक जा, थोड़ा सा वेट कर ले बस। फरहान, मैं उन बच्चों को देख रहा हूं जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा अभी तक। कोई ऐसा है जो जिसने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है? सर मैंने इस सेशन में एक बार भी नहीं पढ़ा। मानस ने एक बार भी नहीं पढ़ा है? अरे ये तो जाती है। नो सर। आज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मानस ही पढ़ दे चल। सर मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, आप देवांश को मौका दे दीजिए, मैं उसके बाद पढ़ लूंगा। अरे जनरस ऑफ यू, सो जनरस ऑफ यू। ठीक है देवांश, चल तू पढ़ दे बेटा। ओके सर। What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early सिर्फ 2 पैराग्राफ 19 पढ़ने बेटा, पहले दोनों पैराग्राफ पढ़ने हैं। ठीक है, ओके सर। सर Ideas of क्या? तो पढ़ूं? हाँ बेटा पढ़ दे फिर, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, ओके सर। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy,
the right to vote and to get elected was granted exclusively to property-owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement of demanding equal political rights. Okay. कोई explain करेगा? Yes, sir, may I? Yes, sir. May I, Arnav? Sir, may I? अभी किस बच्चे ने नहीं पढ़ा है इन सब में से? अर्नव ने नहीं पढ़ा ना? एक सेकंड. जैद? जैद? Yes, sir. एक्सप्लेन कर चल फटाफट. जैद? रुक जा बेटा. अर्नव एक सेकंड. मनोज एक सेकंड बेटा. अब तेरे को पढ़ने नहीं दूंगा मैं जैद. एक्सप्लेनेशन के नाम पे बेटा पहले नहीं पढ़ा है उसका मतलब ये पहले तो बोल के बोल सकते हो. दूसरा पहले नहीं पढ़ा इसका मतलब थोड़ी कि आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हो. सिंपल सिंपल हिंदी उसको नहीं बता सकते हो. थोड़ा बहुत गलती तो बताओगे. आई एम देयर फॉर यू. I want you people to explain. It is because so that your imagination of answering the question when it comes from this paragraph or something, it develops, right? मैं सिर्फ इसलिए आपसे explain करवाता हूँ ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक कि हमने क्या पढ़ा. Yes, sir. अर्नव? Yes, sir. नारायण इसके बाद बेटा. Next time. अर्नव चल एक्सप्लेन कर. Yes, sir. सर इस पैराग्राफ में हमें यही बताया जा रहा है कि जो लिबरल नेशनलिज्म है उसका बेसिकली हर जो एरा है हर प्लेस पे उसका क्या मीनिंग है. सर यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म को ये लोग स्टार्ट इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे लिबरल ये एक वर्ड आया है लैटिन वर्ड लिबर जिसका मीनिंग होता है फ्री, फ्रीडम. इससे अपना माइक म्यूट कर दो. दीक्षा? यस सर. सर तो जो लिबरल वर्ड है वो लैटिन रूट लिबर से आया जिसका मीनिंग है फ्री. अब जो ये लिबरलिज्म है, लिबरल नेशनलिज्म, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं कि जहाँ पे पॉलिटिक्स में या कि हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं किस जगह पे लोगों ने इस लिबरलिज्म को किस तरह से लिया है. ये हमें इस 2.2 टॉपिक के अंडर पढ़ना है. जैसे फ्रांस में हमने देखा था तो लिबरलिज्म वहां के लिए था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्कियल गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट, जो कि वहां पे एक रिपब्लिक, एक कन्वेंशन के रूप में आया था. उसके बाद जब हम उसमें देखते हैं कि इसको अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे हम लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. This means that all people are equal before the law and the law is same for all. लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि मतलब जैसा यूरोपियंस ने इसको लिया है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सबको मिलेगा, मैन वुमेन को सबको इक्वल माना जाएगा, लेकिन सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे. जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को पासिव सिटीजन्स कैटेगराइज कर दिया गया था और इनकी कैटेगरी बहुत बड़ी थी. आई गेस 4 to 28 मिलियन के आसपास पासिव सिटीजन्स थे
इनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, जबकि जो ज्यादा टैक्स पेयर्स थे, जो प्रॉपर्टी मैन थे, उनको एक्टिव सिटीजन्स कह दिया गया था और वही इन द बिगनिंग नेशनल असेंबली में पार्ट ले रहे थे। फिर वो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट का जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम आया जब कन्वेंशन को इलेक्ट किया था इन लोगों ने, तो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए 1 या 1.5 साल के लिए ही सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। लेकिन फिर से जब नेपोलियनिक गवर्नमेंट आई 1804 में, तो उसके बाद से भी वुमेन को जो है डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया और नॉन प्रॉपर्टी मेन को भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाने लगे और वुमेन को माइनर के मतलब स्टेटस पे रिड्यूस कर दिया गया। और ऐसा मतलब वहां पे माना जा रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अथॉरिटी थी, मतलब उन पर जो है वो वही करेंगी जो उनके फादर या उनके हस्बैंड करेंगे। सर हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस यस सर। ओके, ये बहुत अच्छा स्क्रीन से ब्लैक हो गई। मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, रुको। ओके सर।
बच्चों अभी वॉइस क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस सर। विजिबल है? यस सर। यस सर। विजिबल। ओके, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ और समझेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो लिबरल वर्ड है, लिबरलाइजेशन जो वर्ड है, कहीं ना कहीं लिबर से मिलता है। लिबर बेसिकली क्या है, इसका रूट्स जो है वो लैटिन है, ठीक है। अब लैटिन बेसिकली क्या है, वो इटली वाला जो एरिया है ना, वहां पर प्रोमिनेंटली बोली जाती थी लैंग्वेज ये। अब इटली के आसपास वाला एरिया, यानी इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो एरिया था, यहां पर ये अप्रोच सबसे पहले डेवलप करने लगी। और फ्रांस में बेसिकली क्या हुआ कि जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाला टाइम आया, तब सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में ये थी कि हमें राजा को हटा करके अपने आप को बराबर मानना है, हम लोग सब बराबर हैं, कोई किसी बर्थ राइट किसी के पास स्पेशल नहीं होने चाहिए, राइट। तो वहां पर एक समय के लिए लोगों के पास इक्वल राइट्स की बात हुई। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज एकदम से अगर मिल जाती है तो वो ठीक से आप उसे संभाल नहीं पाते हो, राइट। अगर आपको एकदम से फ्रीडम मिल जाती है, आप उसे ठीक से संभाल नहीं पाते हो। जैसे कि आप क्या हुआ, अगर आप देखो कि एज अ स्टेट पाकिस्तान एक स्टेट बनाया गया था एकदम से, ठीक है, नया कंट्री बना था, और वो संभाल नहीं पाए, और आज देखो कहां पे है, दुनिया के सबसे खराब देशों में आता है वो, राइट। यस सर। सेम चीज यहां पर भी है कि उनको जो ये लिबरलाइजेशन की जो फीलिंग थी, जो इक्वालिटी की फीलिंग थी, ये एकदम से लोगों के अंदर आई, एकदम से उनके पास राइट्स आ गए, और वो उसको संभाल नहीं पाए। और उसमें भी क्या हुआ कि जब नेपोलियन आ गया, तो नेपोलियन कोड के थ्रू जो नेपोलियन एरा आया, उसमें उसने क्या किया कि जो राइट्स थे उनको भी उसने चेक किया, बहुत सारे राइट्स को उन्होंने लिमिटेड कर दिया, जैसे कि राइट टू वोट होता है, ठीक है, वो बेसिकली उसने वहां पर उसको रोक दिया। पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे जिनके पास लैंड नहीं होती थी, या फिर जो फीमेल होते थे, उनको वोट राइट नहीं था, राइट। लेकिन जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम आया, तो थोड़े समय के लिए, लगभग 1.25 साल के लिए, लगभग कहना चाहिए 16 महीने 17 महीने तक ऐसा कुछ रहा है, 17 months। हाँ, तो वो जो पीरियड है, उसमें थोड़े समय के लिए उनके पास राइट्स रहे हैं, लेकिन बाद में फिर दोबारा से नेपोलियन ने वो खत्म कर दिया, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि वो लिबरलाइजेशन जो फीलिंग जो लिबरलिज्म की है, वहीं से नेशनलिज्म कहना चाहिए शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहां भी याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं कि these countries call themselves advanced countries where all the rights are protected of people, ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि ये कंट्रीज बड़े एडवांस है, यहाँ पर राइट्स बहुत अच्छे से दिए जाते हैं चीजों के, लोग बड़े इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं ऑल। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। यहां पर आप देखो कि मोनार्की खत्म होने के बाद सिर्फ थोड़े समय, 1 साल के लिए लगभग थोड़ा बहुत कुछ वो रॉबेस्पियर के टाइम पर रहा, बाकी कितना समय लग गया महिलाओं को वहां पर वोटिंग राइट्स पाने के लिए। और इंडिया 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी को इंप्लीमेंट किया गया, और 26 जनवरी को ही सारे राइट्स, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हो, किसी भी विमेन को, कोई भी जेंडर हो, या फिर कोई थर्ड जेंडर भी हो, या फिर कोई और भी हो, तो सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए। नाउ दिस इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। बट सर, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए वो सिर्फ बुक्स तक रह गए, अभी भी पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन इनके में चाहे बेसिकली टाइम ज्यादा लगाओ, लेकिन लोगों के माइंडसेट तक वो बात पहुंच गई। अब तक अभी भी इंडिया में लोगों के माइंडसेट तक इतनी बात नहीं पहुंची है। तो देखो बेटा, उसके कुछ रीजंस है। देखो, यहाँ पर पॉलिटिकल अप्रोच ही उस तरह की है, राइट। तो सर, इसलिए ये कहना कि हम ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, सर, आई डोंट फाइंड इट्स करेक्ट। ना 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 ना, देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग वी आर मोर डेमोक्रेटिक, देयर इज नो पर्टिकुलर वर्ड टू से मोर डेमोक्रेटिक, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज these countries call themselves so much of democratic and so much of forward
कि हम लोगों को नीचा दिखाया गया है हजारों सालों से लेकर के आज तक, लाइक ओवर 200 समथिंग ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया, उसके पहले और कंट्रीज ने रूल किया, और यही बताया गया हमें कि हम लोग पुरानी सोच के लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम लोग बेकार लोग हैं। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू कन्वे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग वो हैं कि जैसे ही हमें हमारी सत्ता हमारे हाथ में दी गई, द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज द राइट टू इक्वालिटी वाज गिवन टू ईच एंड एवरीबॉडी। नाउ इट इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो वो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में नहीं है, राइट वो हाथ में है लोगों के जो वहां पर इम्प्लीमेंट सर करा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट ने। देखो दोनों बातें हैं बेटा उसमें। हालांकि गवर्नमेंट के भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक प्लान को, वो हर एक जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट्स हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए, वो ये चीज कंफर्म करे, सुनिश्चित करे कि सबके पास वो चीजें पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो 100 करोड़ लोग, यू अंडरस्टैंड दिस enormous population, छोटी मोटी नहीं है। और प्लस इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। Yes, sir. In the terms of area, sir. In terms of obviously in terms of area and second in terms of population, मुझे लगता है थोड़े सालों बाद फर्स्ट हो जाएगा। Yes, sir. तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन तक हर एक चीज पहुंचाना वो आसान नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जो सेंस ऑफ इक्वालिटी है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो स्टार्टिंग से ही दे दिया ना, लोगों के अंदर वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, बिल्कुल सच है। क्योंकि वो एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना किसी भी चीज का आसान नहीं होता है, राइट? लेकिन ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू डू इट। और मुझे लगता है कि थोड़े समय में आप देखो कि पिछले इलेक्शन से मैं देखता हूं, जहां तक मैंने इलेक्शंस देखे पिछले इंडियन असेंबली के, अगर मैं इलेक्शन देखूं जो लोकसभा के इलेक्शन है, तो पिछले 6-7 इलेक्शन तो मैंने अच्छे से देखे, 5 इलेक्शन तो अच्छे से देखे हैं। और मुझे खूब अच्छे से ध्यान है कि 5 इलेक्शंस में हर बार 50% से ऊपर वोटिंग नहीं रहता था। 50%, 48%, 52% इतना वोटिंग परसेंटेज रहता था। लेकिन अभी आप देखोगे तो 60, 65, 70, 72 तक भी जाता है। वो टर्नआउट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसका रीजन ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, दिस इज आर नॉट जस्ट आर राइट, इट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ गवर्नमेंट, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और कैसे हमें अपना पार्ट लेना है डेमोक्रेसी में, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, ये मेरी राइट ही नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये जो आ रही है ना चीज बेटा, ये इट इज वेरी गुड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, चेंज इज इम्पोर्टेंट, लाइक वो धीरे धीरे आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, हमने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, अब धीरे धीरे ठीक है। यस सर, ऑब्वियसली मैं बता रहा ना, उसका रीजन ही बता रहा हूँ ना बेटा, क्योंकि हमारे देखो आप 1000 साल तक हम लोग दूसरों के गुलाम रहे हैं ऑलमोस्ट। सर मतलब मेरी जितना मैंने समझा है अपनी कंट्री को सर, यूरोपियंस के आने से पहले, मतलब इतना रूल होने से पहले, मुगल्स के आने से पहले, वी वर फार मच वेरी एडवांस। तो सर पहले तो हम बहुत एडवांस थे, सिर्फ हम समझते थे नहीं है, पर सर अब हम समझते हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, बट एक्चुअली हो नहीं रहे हैं। सर किसी भी लेवल से ले लीजिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम से ले लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। यस सर। बेटा मैं देखो, इट विल बी, ये एक बहुत बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है? इस पे हम जरूर किसी और दिन बात करेंगे। बस छोटा सा एक बात बता देता हूँ कि देखो क्या होता है ना, जब तक आप अपने ग्रास रूट से जुड़े रहोगे ना, तब तक आप प्रोग्रेस भी करोगे, आप प्रॉस्पर होगे, आप आगे बढ़ोगे चीजों में। लेकिन अगर आप दूसरे को कॉपी करने, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मछली पानी से निकल के बाहर कहे कि नहीं मेरे को तो घोड़े की तरह तेज दौड़ना है, या मेरे को हवा में उड़ना पक्षी की तरह, तो पॉसिबल है क्या वो? नो सर। राइट? सो सबका अपना अपना एक कहना चाहिए सिविलाइजेशन है, लोगों का एक रिएक्शन है, वे ऑफ रिएक्शन है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जब चीज हम अपने ग्रास रूट लेवल पर अपने आप को नहीं समझेंगे, जब तक हम यही सोच के बैठ, वी वर अ कंट्री जिसको स्नेक चार्मर्स का कंट्री कहा जाता था, राइट? वी वर कॉल्ड द स्नेक चार्मर कंट्री। हमारे पास बस सांप की बीन ही नजर आती थी सब लोगों को, राइट? पर आज लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वी आर अ कंट्री जो सबसे कम बजट में अपना जो रोवर है वो मार्स पे मिशन मंगल के थ्रू भेज सकते हैं, राइट? मंगलयान यस सर, सबसे कम और फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझ में आ रहा है? यस सर।
ठीक है, तो बेसिकली मेरा जस्ट पॉइंट यही है कि वी आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने उनको पूरा किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी इट विल टेक टाइम। ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया, एक दिन में नहीं हो जाता है, इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है अनदर 15 ईयर्स, आने वाले 15 साल के बाद तुम ये बात मेरी याद करोगे एक दिन कि हाँ सर ने एक बात बताई थी कि यार 10-15 साल बाद चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। और अगर शायद ये कोरोना नहीं आया होता तो आई वुड हैव सेड 10 years, बट दिस कोरोना पेंडेमिक प्रॉब्लम इट हैज स्ट्रेच्ड अप टू लाइक 5 more years, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले 15 सालों में चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, आप देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसको बोला था मैंने पढ़ने के लिए? देवांश? नहीं, देवांश ने तो पढ़ दिया शायद। मानस? यस सर। तो मानस को बोला था, अर्नव को बोला था, किसको बोला था? सर मुझे बोला था। तो पढ़ दो। Okay, sir. Yes, sir. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created, out of countless small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the L, which in each region stood for a different length. An L of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth in Mainz, 55.1 centimeter in Nuremberg, 65.6 centimeter in Freiburg, 53.5 centimeter. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people, and capital. In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. Okay. Anybody wants to explain? Narayan? Sir? You want to explain? Yes, sir. All right, go ahead, beta. यस सर, जो लिबरलिज्म के बारे में हमने पढ़ा तो वो इकोनॉमिक स्फीयर में जो अगर उसको देखा जाए तो उसको ऐसे माना जाता था कि मार्केट्स का फ्रीडम और जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर हमने कुछ गुड्स हमारे पास उसको एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जाना है तो उस पे जो स्टेट ने जो मतलब काफी सारे रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए थे उन सबको हटा देना, यही इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था। इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का अगर मतलब एग्जांपल लेना चाहें तो जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स है वो फर्स्ट 19th सेंचुरी में मतलब यही उस समय भी चाहिए था। और 19th सेंचुरी का जो टाइम है, इसी मतलब ये जो टाइम है इसमें जो मिडिल क्लास है, मतलब जो बहुत सारी पॉपुलेशन जिनकी बहुत ज्यादा थी, इनका मेन डिमांड जो था इसी मतलब यही टॉपिक था कि हमें इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म चाहिए। और अगर फिर बाद में देखें तो जो नेपोलियन कोड था, मतलब नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उसने काफी सारे मतलब काउंटलेस
ऐसे स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स जो प्रिंस या किंग के थ्रू रूल किए जाते थे, उसको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। 39 स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, और उस हर स्टेट में अपना एक अलग करेंसी या और वेट और मेजर का सिस्टम था। इससे काफी प्रॉब्लम्स भी हुई, और जैसे कि कह सकते हैं, एक अगर एग्जांपल के लिए लें तो 1833 में अगर किसी भी मतलब मर्चेंट या किसी को भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको, जैसे एग्जांपल के लिए दिया इसमें, हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, तो उसमें 11 कस्टम बैरियर्स को उसको पास करना पड़ता था, और हर पे उसे 5% का देना पड़ता था। तो अगर ऐसे देखें तो ये 50% तक उसका टैक्स में ही चला जाएगा, मतलब जितनी भी उसके पास गुड्स हैं उसका 50% टैक्स में ही चला जाएगा। और जो ड्यूटीज यानी टैक्स वैक्स थे, वो बहुत मतलब वेट और मेजरमेंट पे हर जगह पे अलग अलग थे। जितना भी हमारे पास गुड है उसके वेट और मेजरमेंट पे ही वो ज्यादातर टैक्स लिया जाता था। और हर रीजन का अपना वेट और मेजर सिस्टम होने के कारण हर जगह मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, कि अगर जैसे अगर हम कहें 1 मीटर, तो उसी समय 1 मीटर की जगह उसमें एक मतलब एक टर्म दिया हुआ है, ईले करके। तो वही अगर आप किसी एक मतलब जैसे स्टेट में जाएंगे, जैसे फ्रैंकफर्ट, अगर उसमें जाएंगे तो वो एक मतलब एक ईले जो है वो 54.7 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। और अगर मेंस में जाएंगे तो 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरमबर्ग में 65.6। और ऐसे मतलब काफी सारी अलग अलग जगहों पे उसका जो लेंथ होगा वो अलग बढ़ता, कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा। अगर आप न्यूरमबर्ग में जाके खरीदेंगे और किसी और जगह बेच देंगे, तो आपको उस पर लॉस लॉस हो जाएगा उस चीज पे। और से ही मतलब ये जो कंडीशंस हैं ये ऑब्स्टिकल्स की तरह देखी गई, क्योंकि इससे आप बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे। क्योंकि अगर किसी ने एक जगह से खरीदा, फिर इतना सारा टैक्स दे के उसको दूसरी जगह पे बेच रहा है, वहां पे भी जाके उसको लॉस ही हो जाना है, तो एक तरह का ऑब्स्टिकल्स की तरह देखा गया। तो इस पे काफी लोगों ने देखा कि मतलब ये जो वेट और मेजर सिस्टम है, इसको सबको सेम कर देना चाहिए। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेरिन। तो मतलब प्रूसिया और बाकी जर्मन स्टेट्स ने मिलके इस जोल्वेरिन को बनाया, और इसने टैरिफ बैरियर्स और काफी सारे मतलब जो बीच में ऐसे कस्टम बैरियर्स जिसको कह सकते हैं वो सब हटा दिए। और जो 30 अलग अलग करेंसीज थी, मतलब जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग करेंसी थी, उन सबको हटा के दो मेन करेंसी रख दी। अब पूरे मतलब जितना कंट्री है उस कंट्री में सिर्फ दो तरह की करेंसीज को फॉलो किया जाता था। और नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क जो है, उसने बहुत आसान कर दिया किसी भी सामान को अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने के लिए। और नेशनल यूनिफिकेशन भी इससे मतलब काफी ज्यादा बढ़ा वो। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो और ज्यादा ताकतवर हुआ, और ये नेशनलिज्म और मतलब और लोगों में गया है, और ये और उस समय बढ़ता ही गया। मतलब जो ये जोल्वेरिन के बनने से जो जो फायदे हुए, उसके कारण नेशनलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से और देखा गया, और वो और बढ़ता गया, पूरे मतलब यूरोप में ही फैल रहा है। और सर डन। I was speaking only, but with the mic off. This is another, I don't know, hazel or what. Acha. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो, basically what I'm trying to say, मैं क्या कहने वाला था, your screen is not visible. ऐसा क्यों भाई? नो सर, विजिबल है। सब visible है। कृष्णा का मैसेज आता है, नो स्क्रीन इज विजिबल। ओके, किसने बोला था पता नहीं। चलो देखो, मेरे हिसाब से तो यार सब कुछ ठीक है। सर विजिबल है। ज़ैद बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, तेरे को नहीं पढ़वाऊंगा मैं आज। नेक्स्ट क्लास में, अब जो भी पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास में, वो भी पहले तो एक्सप्लेन करेगा तब। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, देखो लिबरलाइजेशन बेसिकली वो लिबर से आता है, और वो लिबरलाइजेशन सिर्फ लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के ही नहीं था, लोगों के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को लेकर भी था, लोगों के सोशल कहना चाहिए इक्वालिटी को लेकर भी था, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो देखते हैं कि टैक्सेस लोगों के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के लगे हुए थे, और अलग अलग तरह से उन्हें चार्ज किया जा रहा था।
अगर हम देखें एक इसमें एग्जांपल दे रखा है 1833 का, जिसमें आप हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे तो आपको लगभग 11 टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज यू हैड टू पे, दैट टू 5% ऑफ ईच टाइम। मतलब एक ऐसा रास्ता समझो कि अगर आप दिल्ली से किसी दूसरे मतलब स्टेट में जा रहे हैं कहीं पे, तो वहां पर 11 टोल टैक्सेस आ रहे हैं और हर बार आपको कितना देना है, आपको टोटल वैल्यू जो आपकी है उसका 5% तक भी आपको टैक्स पे करना है, विच बिकम्स मोर देन 50% ऑफ अ टाइम। अब आप सोचिए कि अगर 50% आपने टैक्स ही दे दिया तो प्रोडक्शन का 50% तो आपका बेनिफिट भी नहीं होता। यस सर, लॉस ही हो जाएगा और ज्यादा। तो आप कितने ज्यादा लॉस में आ जाओगे, आप ये सोचो। कौन आदमी है जो अपने प्रोडक्शन का 50% कमा लेता है? सब लोग अमीर हो जाएंगे वैसे ही। उसमें लोग बाग 5% 10% तो सारे ही कमाते हैं चीजों में, मैक्सिमम लेस से 20%, पर उससे ज्यादा कहां, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनके साथ। और फिर यही नहीं कि भैया चलो 5% है, चलो वो देख लिया जाए, हर जगह 5% का वैल्यू अलग था। कहीं पर अगर हम देखें, यहाँ पर एल करके एक यूनिट था उनका, जो कि जिससे हम टेक्सटाइल यानी कपड़ों वगैरह को मापते थे, उनकी मेजरमेंट करते थे। तो उसमें अगर हम देखें तो अगर हम फ्रैंकफर्ट में अगर हम लेने जाएं तो 1L में आपको 54-70 मीटर के आसपास मिलता था क्लोथ, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65 प्लस सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट दिस पैराग्राफ वांट टू टेल यू कि भैया जो ये भी एरियाज में जहां पर भी ये सिस्टम लागू थे वो सब एकदम प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, और वहां पर जिस तरह से ये लोग चार्ज कर रहे थे टैक्सेस वो भी खराब था, और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ वेइंग था वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, जोल्वेरिन एक फॉर्म ऑफ यूनिट वहां पर किया गया कि भैया एक नया तरीके का एक उन्होंने एक इकोनॉमिकल वेइंग और मेजरमेंट पॉलिसी अपनाने की बात की, जिसको जोल्वेरिन नाम दिया गया। ये प्रूशिया वाले एरिया में बेसिकली हुआ था। ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ प्रूशियन एम्पायर और प्रूशियन पीपल। ठीक है, और बाद में उसे जर्मन स्टेट्स में सबने उसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी के यूनिट्स थे उनको खत्म करके कितने यूनिट्स बचे थे लास्ट में? सिर्फ 2 बचे थे। सिर्फ 2, यानी लगभग 30 तरह के मेजरमेंट्स पहले थे, उसमें से सिर्फ कितने बचे? 2। ठीक है, इससे बेसिकली क्या हुआ कि एक तो लोगों की मोबिलिटी इजी हो गई एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। लोग जल्दी जल्दी, जो कि टाइम बहुत कंज्यूम करता था हर बार, वो बहुत ज्यादा, भाई फॉर एग्जांपल एक जगह किसी और का माप है, दूसरी जगह फिर कुछ और माप है, तो आपको हर बार अलग अलग तरह से उसको वे करना है या मेजर करना है। ठीक है, तो वो टाइम बचने लगा लोगों का। ठीक है, एक वो जो कहना चाहिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी लोगों के बीच में कि भाई तुम्हारे यहाँ इतना चार्ज करना पड़ता है, उस वाले टोल पे इतना चार्ज है, तो उस वाले इस पे, तो ये खत्म हो गया, सबका इक्वल रेट हो गया। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा उसमें चीज किया गया। दूसरा, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक एंड नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। इससे क्या हुआ, बेसिकली लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि भाई इकोनॉमिकली जब आपके पास पैसा बचने लगता है तो आप किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगते हो या उनके आइडियाज को सपोर्ट करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी आज है, ये लास्ट ईयर जो जीती थी, वो उसके सबसे बड़े 2-3 प्रोमिसेस थे जो उन्होंने कहे हैं या करे हैं। जैसे कि आप बोलेंगे तो एक तो बिजली का, एक फ्री पानी का, और लास्ट में वो वुमेन को बस में फ्री ट्रेवल का। राइट, तो लोगों के दिमाग में क्या है कि नहीं हमारा पैसा बच रहा है, डायरेक्ट पैसा हमारा बच रहा है, तो इसलिए उन्होंने उन्हें वोट किया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो यही चीज होती है कि जब कोई भी गवर्नमेंट लोगों का डायरेक्ट पैसा बचाती है, डायरेक्ट टैक्सेस में बेनिफिट देती है, तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर इसमें मतलब एक ईयर सर लिखा हुआ है 1833, तो सर इस ईयर में तो जो नेपोलियन ने जो मतलब सर वेट और सिस्टम मेजर्स किए थे सर, वही सब चल रहे थे ना अभी? हाँ। ओके सर। अच्छा ये बताओ, ये वाला आज ही शुरू कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में शुरू करा जाए?
तो नेक्स्ट क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि पूरा होगा नहीं। यस सर। 2-3 मिनट ही बचे हैं। हाँ देखो काफी बड़ा भी है ये। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, ठीक है। यस सर। A new conservatism after 1815, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, अच्छा एक काम करेंगे कि चलो ठीक है रहने दो, फिर मैं खुद ही उसको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड इवनिंग सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाय एवरीवन।